دشمنی احمد پہ شدت کیجیے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم سنیوں کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا. نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا رہوں گا. ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، گانے بجانے تماشوں سے بچتا ہوں. الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ. میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا. الہی مجھے غوث پاک کے مریضوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا. اس مہینے کی مناسبت سے ایک حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ناصح عالم ہیں، ہادی برحق ہیں. ان کی ایک ایک بات میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے اور ہدایت ہی ہدایت ہے. تو ان کی بات سے میں آغاز کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی اور آپ کو سب کو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نصیحت سناتا ہوں. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، اور غالباً وہ جمعہ کا دن تھا. اس دن خطبہ دینے کا انداز بھی تھا. یہ حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کعب بن عجرہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے سنی، اس انداز پر کہ حضور علیہ السلام ممبر کے ایک درجے پر، اس کو آپ انگریزی میں کہہ لیجئے کہ اسٹیپ، ایک اسٹیپ پر کھڑے ہوئے، درجے پر بلند ہوئے اور فرمایا آپ نے آمین. دوسرے درجے پر تشریف لے گئے، دوسرے اسٹیپ پر بلند ہوئے، فرمایا آمین. تیسرے پر آپ بلند ہوئے، اسے اسٹیپ پر تشریف لے گئے، فرمایا آمین. تو صحابہ رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہ اجمعین نے عرض کی کہ یہ سرکار نے کیا فرمایا، کس بات پر آپ نے فرمایا کہ جبریل امین علی نبینا وعلی الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوئے، اور انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اس کے لیے تیری رحمت سے دوری ہو، اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. تو فرمایا کہ میں نے آمین کر. پھر جبریل امین نے عرض کی، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں
کہ اللہ اس کے لیے دوری ہو، اس کے پاس اس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کر سکے۔ فرمایا میں نے آپ تیسری بار حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ اللہ اس کے لیے دوری ہو جس کے پاس جس کی مجلس میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا تو اس نے ان پر درود نہ کیا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان شریف جو ہے رحمتوں کا برکتوں کا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مہینہ، اس میں بندوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور خوش نصیب وہ ہے جو اس رحمت والے مہینے کی رحمت سے مالا مال ہو اور مغفرت کے مہینے میں تھوڑا سا کام اپنی مغفرت کا کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو میٹ دے اور اس کی مغفرت کرے۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، سرکار نے فرمایا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا، رمضان کا رمضان اس لیے نام رکھا گیا ہے لأنہ یرمل الذنوب، رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ لأنہ یرمل الذنوب یہ الفاظ ہیں اور یہ حدیث جامع صغیر میں امام اجل علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ استخراج کی ہے، روایت کی ہے۔ تو خوش نصیب وہ ہے جو اس مہینے کے روزے رکھے اور راتوں کو جاگے اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد کرے، اس کی عبادت کرے، اور اگر راتوں کو جاگنا نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم اتنا تو کرے کہ نمازوں کو جماعت سے پڑھے اور تراویح بھی باجماعت، تراویح باجماعت پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے، یعنی اگر کسی شہر کے لوگ اس کو مل کر کے سب یک بیک اس کو چھوڑ بیٹھیں گے تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو دوسروں کے سر سے بھی گناہ ٹل جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ لوگ تو مسجد میں جاتے ہی ہیں، تراویح پڑھتے ہی ہیں، اب ہمیں جو ہے وہ تراویح پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تراویح جماعت سے پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے اور نہایت برکت کی بات ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ یہ تراویح جو باجماعت ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سنت، وہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا یقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد جو دو جلیل القدر صحابی اور میرے خلیفہ آ رہے ہیں ان کی تم اقتداء، ان کی پیروی کرو، وہ کون ہیں؟ ابو بکر و عمر۔ اس بات میں، اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سب سے پہلے خلافت جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ملے گی اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو خلافت ملے گی۔ اس حدیث سے جو ہے مسلک اہل سنت والجماعت ثابت ہو گیا کہ صحابہ میں اعلیٰ تر
ترتیب الخلافت، خلافت کی ترتیب پر 4 صحابہ جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور ان کے بعد حضرت علی مرتضی کرم اللہ تبارک و تعالی وجہہ الکریم. جو اس ترتیب کو بگاڑے، اس ترتیب پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، جو اس ترتیب کو بگاڑے اور اس ترتیب کو نہ مانے وہ گمراہ ہے، بے دین ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے. اور اس ترتیب پر بہت ساری حدیثیں دلالت کرتی ہیں، جن میں سے ایک حدیث جو میں نے ابھی آپ کو سنائی سے بھی یہ بات نکلتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابن عمر سے غالباً یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے تھے کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور حضور کو یہ خبر پہنچتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں ان سے اپنے جیسے صحابہ سے یہ کہا کرتے تھے. تو بظاہر تو یہ صحابہ کا کلام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں فرماتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صحابہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ جو بظاہر صحابہ کا کلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تقریری ہے. ایسا قول یا ایسا فعل کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا جائے، حضور کے سامنے کیا جائے، یا حضور کی کے پس غیبت کیا جائے، پھر حضور کو خبر پہنچے اور اس کو حضور مقرر رکھے، وہ بھی سرکار کی حدیث کہلاتا ہے. اور اس پر بہت ساری احادیث وارد ہیں، اور یہ عقیدہ اجماعیہ اہل سنت والجماعت کا ہے. یہاں تک کہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تبارک و تعالی وجہہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے کو عمر پر فضیلت دے گا میں اس کو مفتری کی حد مانوں گا. مفتری کی حد 80 کو ہے، جو کسی پر جھوٹ بہتان باندھے اور کسی کو معاذ اللہ قذف کرے، زنا کی تہمت لگائے، تو اس کی حد جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں اس کو مفتری کی حد ماروں گا. یعنی یہ فتویٰ حضرت علی نے دے دیا کہ وہ میرے نزدیک جو ہے بہتان باندھنے والا ہے اور وہ مفتری ہے، جھوٹا ہے، اور اس کی حد وہی ہے جو قاذف کی بہتان باندھنے والے کی حد ہے. تو یہاں پر معلوم ہم کو یہ ہوا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ہمیں اور آپ کو تراویح میں جماعت پر اکٹھا کیا. تو اس زمانے سے یہ سنت اہل سنت والجماعت کی چلی آ رہی ہے. اور مجھے اس وقت نام یاد نہیں آتا ہے کہ کون حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے زمانے میں کون صاحب امامت کر رہے تھے. بہرحال جب حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے دیکھا کہ تراویح جماعت سے ہو رہی ہے، سرکار کے زمانے میں تراویح جماعت سے نہیں ہوتی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے زمانے میں تراویح جماعت سے شروع ہوئی تو پہلی بار جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملاحظہ فرمایا نعمت البدعۃ هذه، کیا بہترین اور اچھی بدعت ہے یہ. بدعت ہر نو پیدا کام کو، ہر نئی بات کو جو ہے بدعت کہتے ہیں، جو اگلے زمانے میں نہ رہی ہو پھر پچھلے زمانے میں پیدا ہوئی ہو اس کو بدعت کہتے ہیں. تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ ہر بدعت حرام یا ناجائز یا شرک ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کچھ بدعتیں ایسی بھی ہیں کہ جو اچھی ہوتی ہیں. یعنی دین میں اگر کوئی اچھی بات نکالی جائے اور دین اس بات کا رد نہ کرتا ہو اور دین کی کوئی اصل سے وہ بات نہ ٹکراتی ہو تو وہ بات جو ہے وہ اچھی ہے. قیامت تک ایسی باتیں جو ہے
वो निकलती रही हैं और क़यामत तक निकलती रहेंगी। और दीन में अगर कोई बुरी बात निकाले, इसको दीन जो है इबा करता है, और दीन जिससे मना करता है, अल्लाह और रसूल ने जिस बात से मना फरमाया है और दीन के क़वाइद पर और दीन के उसूल पर वो बात सही नहीं बैठती है, तो वो बिदअत चाहे सहाबा के जमाने में हुई हो या सहाबा के बाद के जमाने में हुई हो, या फर्ज कर लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही में हुई हो, तो वो बिदअत नामर्जिया और बिदअत सय्यिआ है, वो हराम है और नाजायज है। और हर बिदअत को, जैसे वहाबी कह देते हैं कि हर बिदअत, हर नई बात जो है वो हराम है और नाजायज है, ये उनका इफ्तिरा है। कुरान करीम का इरशाद है, वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िब हाज़ा हलाल व हाज़ा हराम लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िब। तुम्हारी ज़बानें जिस बात को कहती हैं झूठे तौर पर कि ये हलाल है, ये हराम है, तुम उसको अपने तौर पर जो है जोर ज़बान से हलाल और हराम मत कहो, बल्कि हलाल वो है जिसको अल्लाह और रसूल ने हलाल किया, और हराम वो है जिसको उसके अल्लाह और रसूल ने मना फरमाया और हराम फरमाया। इंग्लिश में कुछ जिसमें तो एक सवाल है सरकार के जमात क्या है, किसी को अभी ये जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, भूल जाऊंगा। बीच में मैं भूल जाऊंगा। एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके माँ बाप उसको जन्नत में दाखिल न कर सके, उसके लिए रहमत से दूरी हो। मालूम यह हुआ कि सुन्नी सहीहुल अकीदा के माँ बाप हैं, उनकी उसके ऊपर खिदमत करना और उसकी इताअत करना जायज बातों में, नाजायज बात में किसी की इताअत जायज नहीं है। ला ताअता लिअहदिन फी मअसियतिल खालिक, गालिबन ये हदीस है या बुजुर्गान दीन का मक़ूला है कि अल्लाह तबारक व तआला की मासियत में मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी और उसका कहना नहीं माना जाएगा। तो माँ बाप अगर कोई जायज बात का हुक्म दे तो वो अगर फी नफ्सिही जायज है, लेकिन उनके हुक्म से जो है वो वाजिब हो जाती है, उसका कहना जो है वो जरूरी हो जाता है। और उनकी नाफरमानी और उनको ईजा देना और उनको तकलीफ पहुंचाना, ये ऐसा फेल है कि आदमी जो है उससे मुस्तहिक़ मार, मुस्तहिक़ रोज़ा हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तौफीक अता फरमाए कि हम मुस्तहिक़ जन्नत बने और मुस्तहिक़ जन्नत लोगों की राह पर हम चलते रहें। अल्लाह ने हमको यही हुक्म दिया है इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम में कि सीधा रास्ता हमको चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर जो जन्नत के मुस्तहिक़ हैं। तो जन्नत के मुस्तहिक़ जो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के बाद जो है सबसे बड़ी चीज जो जन्नत का मुस्तहिक़ बनाती है वो अपने माँ बाप की इताअत और उनका शुक्र मानना और उनकी खिदमत करना और उनकी ताज़ीम करना, यही जो है सबसे बड़ी चीज है जो आदमी को जन्नत का मुस्तहिक़ बनाती है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के साथ मिलाया है वालिदैन की हक मानने को और उनकी खिदमत को, उनकी इताअत को। कुरान ने फरमाया अनिश्कुर ली वली वालिदैन, मेरा शुक्र कर और अपने माँ बाप का शुक्र। तीसरी बात यह है कि सरकार ने फरमाया कि जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने उसका मुझ पर जोर न भेजा, उसके लिए रहमत से दूरी हो। इस सिलसिले में बहुत सारी हदीसें हैं। एक हदीस ये भी है और इसीलिए उलमाए किराम ये फरमाते हैं, और इसमें दो मजहब हैं। एक इमाम अजल, दोनों बहुत बड़े अपने पाए के बुजुर्ग, बहुत ही बड़े पाए के बुजुर्ग हैं और इमाम हैं। एक इमाम ये फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, उसी मजलिस में जितनी बार आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है, नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। और एक इमाम उम्मत पर आसानी के लिए फरमाते हैं कि एक मर्तबा पढ़ना वाजिब है और मुकर्रर अगर जिक्र हो तो पढ़ लेना मुस्तहब है। बहरहाल मोमिन के लिए जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने में जो है न कोई ज़हमत है
और न वो कोई जहमत महसूस करेगा। जिसका ईमान जितना कामिल होगा वो उसी कदर उतने ही बार और उसी बार बार हुज़ूर सलाम के नाम नामी पर दुरूद भेजना जो है अपने लिए बाइस रहमत समझेगा और बाइस सादत समझेगा। और यकीनन जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के इस्तिग़फ़ार का बेहतरीन जरिया है कि आदमी हुज़ूर सलाम पर दुरूद भेजता है और अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहमत नाज़िल फरमाता है। हदीस में है कि जो मेरे ऊपर एक मरतबा दुरूद भेजे अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और एक हदीस में ये भी है कि जो मेरे ऊपर जो है एक मरतबा दुरूद भेजेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 बरस के गुनाह जो है वो माफ फरमा देगा। ये वहाबिया का तरीका है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात सलाम के लिए वो हीले और हीले ढूंढते हैं और हुज्जतें करते हैं और उसको मना करते हैं। ये उनको मुबारक हो। और हम चूंकि अहले सुन्नत वल जमाअत है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की रहमतों से और उसके करम से जो है वाफिर हिस्सा ऐसा वाफिर हिस्सा मिला हुआ है कि इस दुनिया की रहमत में तो सब शरीक हैं, लेकिन वो आखिरत की रहमत जो है वो हमारे ही लिए खास है। तो हमारे लिए और आपके लिए जो है ये हदीस जो है निहायत ही सआदत और बरकतों की जामिन है। लिहाजा ये अपना वसीला बनाना चाहिए कि अपने औकात में कसरत से दुरूद शरीफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तबारक व तआला पर भेजते रहें। हदीस पाक में हदीस में और सुनाना चाहता हूँ। हदीस पाक में है कि दुनिया और दुनिया में जो कुछ है वो मलऊन है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की याद के। और जो अल्लाह तबारक व तआला की याद और उसके जिक्र से जो चीज मुनासिबत रखती है और जिसका उससे ताल्लुक है उसके सिवा जो कुछ दुनिया में है वो मलऊन है। मलऊन मा फिद दुनिया व मा फीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा वाला, ये हदीस के अल्फाज है। तो आदमी को ये चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की याद से कभी गाफिल ना, ज़बान से जिक्र करते रहना जो है ये हर वक्त आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन आदमी अगर चाहे तो आदमी का दिल जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की याद में अबतन जो है वो मसरूफ रहे। ये यूं कर सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुशनुदी अपने वो तमाम अफ़आल में, अक़वाल में, हरकत में और सकनात में वो अल्लाह और अपने रसूल की खुशनुदी को तलब करे और उसको ढूंढे। और ये यूं ही मुमकिन है कि जब हम अपने अक़वाल और अफ़आल और मामलात को और तमाम ख़यालात को हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत के दायरे में रखें और उसकी पाबंदी हम करें। तो अगरचे हम दुनिया में रहें, अगरचे हम अपने बच्चों में रहें, अपनी बीवी के साथ में रहें और अपनी बिजनेस में रहें, लेकिन कोई कदम हमारा जो है अल्लाह तबारक व तआला की याद से और उसके जिक्र से हमारा कोई पल जो है वो खाली नहीं होगा। इसीलिए बुजुर्गों का ये मक़ूला है और हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के हजरे में ये शेर है कि चीज़ दुनिया अज़ खुदा गाफिल बुदन नए खुमाशो नुक़रहो फरज़ंद ज़न। दुनिया क्या है? खुदा से गाफिल हो जाना। कपड़ा और सोना और चांदी और फरज़ंद ज़न बेटा और बीवी ये दुनिया नहीं है, बल्कि अपने तमाम मामलात में अपने रब और अपने नफ्स के दरमियान के मामलात में और बीवी और बच्चों के साथ मामलात में और दूसरे लोगों के साथ मामलात में, तमाम मामलात में अल्लाह और रसूल की मर्जी को आदमी मुकद्दम सके और उन्हीं की मर्जी पर वो चले और उन्हीं की मर्जी को तरजीह दे, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से वो हमकिनार रहेगा। और अगर इसको छोड़ करके वो दुनिया को तलब करने जाएगा तो दुनिया का ये वसीला है कि जो उसको तलब करता है ये उसको थका देता है और वो आगे निकल जाती है और ये उसके पीछे जो है भागता रहता है। और जो दुनिया को छोड़ करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी
में लग जाता है तो दुनिया जो है उसके कदमों में झुक है। जैसा कि आपने ये मुशाहिदा किया होगा और तारीख भी इस बात की शाहिद है, और तारीख की बातें तो लोगों को याद नहीं रहती हैं, लेकिन आजकल का मुशाहिदा भी इस बात का शाहिद है कि जो अल्लाह और रसूल की मर्जी में जरा भी लग गया तो दुनिया उसके लिए झुके, और जो दुनिया अल्लाह और रसूल को छोड़ करके जो दुनिया का होकर के रह गया तो दुनिया ने जो है उसको हटा दिया। और यही आप देख लीजिए कि मुसलमानों के इजहार का और मुसलमानों की पत्नी का जो है जो मुजाहरा है वो इसी वजह से है कि हमने शरीयत मुतहरा की पैरवी हमने छोड़ दी है। तो अल्लाह और रसूल की मर्जी हमको मलहूज न रही और हमने अल्लाह और रसूल की मर्जी का लिहाज नहीं किया, इसी वजह से हमारे पास बाप भी हैं, वसाइल भी हैं, माल और दौलत की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमें वो इज्जत जो हमको मिलना चाहिए, ये बात कहने की नहीं है, हम सब देख सकता है हमें वो इज्जत नहीं मिली हुई है। क्यों? इसलिए कि इज्जत सारी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु के दस्ते करम में है, और इनके दर को छोड़ करके इनकी मर्जी को छोड़ करके कहीं दुनिया वालों के पास जो है ना इज्जत मिली है। वो कुरान शरीफ में है फलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिह, इज्जत सारी अल्लाह की है और उसके रसूल की है, और सच्चे गुलामों सच्चे मुसलमानों की इज्जत। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको शरीयत मुतहरा की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, और जिक्र हकीकी जो उसकी हकीकी और सच्ची याद है अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को उस जिक्र हकीकी से मामूल करे। और बदमज़हबियत क्या है? What is the correct path of Ahl Sunnat wal Jamaat? And if we don't follow the Ahl Sunnat wal Jamaat, other Jamaats like Wahhabism, Jamaat Islami, Tablighi Jamaat, what is our fate? Ahl Sunnat wal Jamaat are the persons who believes Allah and his respected Rasul alayhi salatu wassalam, and who faith in all principles of Islam. Meanwhile, the Wahhabi and the persons who have wrong tenets never believe in all principles. They faith in some principle, and in meantime they refute some principle of deen, of Sharia, of our religion Islam. So whoever uses to refute any principle of deen, he is not mu'min. He is quite entitled. He is just a kafir. वो लोग हैं जो तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं और दीन की तमाम जरूरियात को मानते हैं, जबकि मजहब वहाबी और वो लोग जो गलत अकीदा रखते हैं वो जरूरियात दीन में से कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते हैं। हालांकि जो दीन के प्रिंसिपल्स
اور دین کے اصول اور دین کے ضروریات میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرے، جو ریفیوز کرے، وہ انفائڈل ہے، کافر ہے، بے دین ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب آپ میمنی میں سمجھائیے، ان کی گمراہی اور بے دینی ہے، اس لیے کہ ہمارے دین کے پرنسپلس میں سے یہ ہے، one of the principles of Islam is that you must pay respect to your prudence. میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ حضور بیعت لیتے وقت کچھ وعدہ مریدین سے لیتے ہیں کہ ان کاموں کو کرتا رہوں گا، ان کاموں سے بچتا رہوں گا۔ حضور اگر اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت فرماتے ہوئے پھر لوگوں کے دلوں کو اور روشنی بخشیں تو زیادہ مناسب رہے گا، تاکہ اکثر و بیشتر مریدین ہی ہیں، اور اگر مریدین نہیں ہیں تو سب کے سب مرید جیسے ہی ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے کارآمد چیز ہو، آئندہ ہم ان چیزوں سے بچتے رہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور ان چیزوں کو کرتے رہیں جو ہمارے لیے مناسب ہیں۔ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جو وعدہ بیعت کے وقت لیا جاتا ہے اور بیعت کے کلمات پڑھنے والا جو کلمات پڑھتا ہے، ان کلمات سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک عہد ہے اور ایک پیمان ہے، اور وہ وعدہ کرتا ہے، اور وعدے کا لحاظ اور خاص یہ اخلاقاً بھی ضروری ہے اور شرعاً بھی بہت ضروری ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، قرآن کریم کا ارشاد ہے، اپنے عہد کو پورا کرو اور بے شک عہد سے کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ تو سب سے بڑی بات جو ہے، جو پہلے بات کی جاتی ہے اور جو عہد لیا جاتا ہے، اور بیعت کے کلمات پڑھنے والا جو عہد کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پر قائم رہے گا۔ یہ بیعت کی جان ہے، اور بیعت کی جان نہیں ہے، یہ مسلمانی کی جان ہے۔ اگر مسلمان ہے تو مذہب اہل سنت والجماعت پر اس کو قائم رہنا ضروری ہے، اور مسلمان ہے بھی وہی جو مذہب اہل سنت والجماعت پر قائم ہے، جو ان کے عقائد کو مانتا، جانتا، مانتا ہے۔ جاننا بھی ضروری ہے، ماننا بھی ضروری ہے۔ جو عقائد اہل سنت والجماعت کو نہیں جانتا وہ سنی نہیں ہے، اور جانتا تو ہے لیکن مانتا نہیں ہے وہ بھی سنی نہیں۔ تو تمام عقائد اہل سنت والجماعت کو جاننا اور ماننا لازم ہے، اور اس پر قائم رہنا لازم ہے۔ اس کے بعد نماز، روزے اور جتنے واجبات ہیں شریعت میں، ان میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ کوئی آپ کو سچا پیر اس میں چھوٹ نہیں دے سکتا ہے، اور جو آپ کو چھوٹ دے وہ سمجھ لیجئے جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ اسی لیے غالباً حضرت مولانا مانوی اپنی مثنوی میں مولانا روح فرماتے ہیں کہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست بس بہر دستے نہ بات دست۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی صورت میں شیطان آتا ہے، تو وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے جو نماز سے منع کرے، یا روزے سے منع کرے، یا واجبات میں کوئی چھوٹ دے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے جو اولیاء کرام کے، صوفیاء اعظام کے اور پیروں کے پیر، ان سے کسی نے پوچھا کہ کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تکلیفیں جو تھیں روزہ اور نماز کی تکلیفیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو راہ میں لگے ہوئے ہیں، راہ طے کر رہے ہیں، پہنچنے والوں کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم تو پہنچ گئے۔ تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ سچے ہیں، بے شک وہ پہنچ گئے، لیکن کہاں پہنچے؟ فرمایا الی سقر،
जन्नत की तरफ नहीं पहुंचे, जहन्नम में पहुंचे। तो और अगर आप देखिए तो ये जो बैत है ये हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तबारक व तआला अलैहिम अजमईन दोनों की सुन्नत की एक झलक है। वो वाकया याद कीजिए कि शजरतुर रिज़वान, एक मकाम हुदैबिया में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से बैअत ली थी। तो काहे की बैअत ली थी? नमाज छोड़ोगे, रोजा नहीं रखोगे, मादल्लाह अल्लाह के साथ शरीक ठहराओगे? नहीं, बैअत ली थी। सबसे पहली बात ये थी कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखो, अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराओगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानोगे, नमाजें कायम रखोगे, ज़कात दोगे और अल्लाह रसूल की इताअत से कभी रूगर्दानी नहीं करोगे, खुशी की हालत हो या गमी की हालत। और सरकार ने तो फरमाया, सरकार जैसा कोई पीर नहीं, वो सरकार जो पीराने पीर हैं, पीरों के पीर हैं, उन्होंने तो फरमाया कि दीन की दौलत मिल गई तो दीन पर ऐसे कायम रहो कि ला तुशरिक बिल्लाहि व इन खुर्रित, अपना दीन मत बदलना, काफिर मत होना अगर जो तुम्हें जला दिया जाए। तो ये पीरी मुरीदी की जान है। और उसके साथ ये है कि जो बातें हराम हैं शरीयत में, जिन बातों से मना किया गया है, उनसे आदमी परहेज करे, उनसे बचे। और यही बैअत जो है असले बैअत है, और यही बैअत सरकार अबतरार सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और यही वो बैअत है जो हमें और आपको सच्चों के साथ रखने की जामिन है। वो सच्चे जिनके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि इन्हीं के साथ करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। उसके लिए क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हमको नुस्खा दिया? वहां भी तो कहेगा कि अल्लाह से डरते रहो, किसी वसीले की जरूरत नहीं है, लेकिन कुरान कहता है कि ये तो शैतान की राह है, ये शैतान की राह है जो बेवसीलों को जो है शैतान की तरफ पहुंचाती है। लेकिन रहमान की राह कहां मिलती है? वो कूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ। जब सच्चों के साथ रहोगे तो अल्लाह से डरते रहो हिफाजत के लिए। तो ये इन बातों का लिहाज रखा जाए। अल्लाह तबारक तआला मुझे भी तौफीक अता फरमाए। अभी तो न अल्लाह से वाकिफ हैं और न अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से वाकिफ हैं, और न वो शिर्क ही के मफ़हूम से वाकिफ हैं। उनका शिर्क तो ऐसा है कि वो पैरा हुआ है बिल्कुल। अगर मैं उसकी तफसील करने जाऊं तो मैं बता दूंगा कि वो शिर्क से वो खुद भी नहीं बचे हुए हैं। वो दुनिया को मुशरिक बनाने के फेर में, मुसलमानों को मुशरिक बनाने के फेर में जो है वो खुद भी मुशरिक हो गए। इसको आप यूं ही समझ लीजिए कि जैसे वो कहते हैं कि वसीला पकड़ना शिर्क है, किसी का वसीला पकड़ना शिर्क है। औलिया और अंबिया की मदद चाहना, उनको मुसीबत के वक्त में पुकारना शिर्क है। तो अब मैं ये पूछता हूं कि दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो बगैर वसीले के हो जाता है, या दुनिया का कौन सा ऐसा मामूली से मामूली काम है, बड़े कामों को तो छोड़ दीजिए, जो
आपस की मदद के बगैर हो जाता है। और सुबह शाम में कितनी मर्तबा आदमी अपने नौकर को पुकारता है, अपनी बीवी को पुकारता है, अपने लड़के को पुकारता है, भंगी को पुकारता है, चमार को पुकारता है। तो इन सब को पुकारने से और इन सब की मदद लेने से शिर्क नहीं होता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इन सब को पुकारने पर जो है शिर्क नहीं होता है। अब वो कहते हैं कि वो मरने के बाद पुकारना शिर्क है, और ये भी कहते हैं कि साहब दूर से पुकारना शिर्क है। तो ये उनका खुदा होगा जो दूर होगा, हमारा खुदा जो है न दूर है न करीब है। हमारा खुदा जो है वो जिहत से पाक है, यानी दूर और करीब जो है ये फासले की चीजें हैं ना, और फासला उसी पर एप्लीकेबल होगा, और फासला उसी के लिए हो सकता है जो जिस्म हो, जिसको डायरेक्शंस और जिहतें जो है घेरे। और हमारा रब जो है वो डायरेक्शन से और जिहत से पाक है, इसलिए कि वो जिस्म नहीं है, उस पर ज़मान और मकान कुछ भी जारी नहीं होता है। और वैसे उसकी रहमत जो है वो ऐसी करीब है, तो कुरान खुद फरमाता है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम आदमी की शहरग से भी ज्यादा करीब है। यानी हमारी कुदरत और हमारी इनायत जो है वो आदमी की शहरग से भी ज्यादा करीब है। और एक आयत में यह है कि फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावत अद्दाइ इज़ा दआन। सहाबा ने पूछा कि हमारा रब करीब है तो हम उससे आहिस्ता बात करें या दूर है तो हम उसको जोर से पुकारें। तो ये आयत करीमा उतरी कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावत अद्दाइ इज़ा दआनी फलयस्तजीब। जब तेरे बंदे मुझसे तुझसे जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में सवाल करें तो तुम महबूब ये फरमा दो कि मैं करीब हूं और मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूं। जब वो मुझसे दुआ करता है फलयस्तजीबू ली, तो शर्त यह है कि वो मेरा कहना माने, वलयुमिनू भी, और मुझ पर ईमान रखें। तो ये कह देना कि साहब दूर वाले को पुकारना शिर्क है, या मुर्दा को पुकारना शिर्क है, या उससे मदद चाहना जो है वो शिर्क है, ये वो कह सकता है जिसको शिर्क का मफ़हूम मालूम न हो, और जिसको रब पर जो है ईमान न हो, रब की जात को न जानता हो। और उनके ऊपर फिटकारी यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पहचान ये मुकर्रर की है कि उसने रब वो है जिसने ये रसूल भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने रसूल को नहीं माना तो औलियाए किराम को न माने तो उसकी शिकायत ही क्या है। और हकीकत में तो उन्होंने अपने नफ्स ही को नहीं जाना, और जो अपने नफ्स को जानेगा तो ये हजरत यहया इब्न मुआज़ राज़ी रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि अपने नफ्स को जान लेना जो है यही इरफान रब है। मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह, जो अपने नफ्स को जानेगा उसने अपने रब को जाना। तो उनके ऊपर फिटकार ये पड़ी कि वो ईमान से भी बेबहरा हुए, और अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनका दीन लिया तो अपनों को भी छीन लिया। तो ये जो कहते हैं वो कि ये शिर्क है, मुर्दों से मदद मांगना शिर्क है, और दूर वाले को पुकारना शिर्क है। तो देखो शिर्क जो है वो जब होगा तो कभी माफ नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुर्दों को मदद मांगने से शिर्क हो जाए, या दूर वालों को पुकारने से जो है वो शिर्क हो जाए, और करीब वालों को पुकारने से या उनसे मदद चाहना जो है वो जायज हो जाए। जब ये शिर्क है तो सबके हक में शिर्क होगा। ऐसा कोई शिर्क नहीं है कि जो बाद लोगों के लिए जायज हो और दूसरे लोगों के लिए जो है वो हराम हो। तो मालूम यह हुआ कि
इनकी औलिया दुश्मनी और अंबिया दुश्मनी जो है यही से जाहिर होगा कि आपस में एक दूसरे को पुकारते हैं तो शिरक नहीं होता है, और हम अंबियाए किराम को पुकारें, अंबियाए किराम से मदद चाहें, औलियाए किराम से मदद चाहें तो इनके नजदीक जो है ये शिरक हो जाता है। तो यहीं से इनकी अंबिया दुश्मनी और औलिया दुश्मनी जो है वो जाहिर हो गई। और इसके अलावा जो है हमारे मजहब महज़ब और हमारे अकीदे के औलियाए किराम बादल विसाल जो है मदद फरमाते हैं। इस पर एक दो दलीलें नहीं, अहादीस करीमा और आयत करीमा में जो है इस पर सैकड़ों दलीलें जो है कायम हो चुकी हैं। और उलमाए किराम ने खुसूस सैयदना आला हज़रत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने बरकातुल इमदाद जहदील इस्तिमदाद एक रिसाला पर जो है पूरा लिखा है, जिसमें यह साबित फरमाया है कि अहले इस्तिमदाद के लिए, ये सुन्नियों के लिए औलियाए किराम की इमदाद की बरकतें जो है वो साबित है। और हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का मुझे इस वक्त एक कौल याद आता है। उन्होंने बहस करते करते कहा कि जिंदे की मदद जो है जिंदे के हक में जो है वो ज्यादा होती है, या जो इस दुनिया से चला गया जिसको मुर्दा कहते हैं ये लोग बेअदबी के तौर पर, उसकी मदद जो है वो जिंदे के हक में ज्यादा होती है। फरमाते हैं कि जो दुनिया से चला गया क्योंकि वो हजरत हक में है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में है, और बराह रास्त जो है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जो है वो मुस्तमिद है, उस पर जो है फैजान हो रहा है, तो उसकी मदद जिंदे के हक में जो है वो ज्यादा है। और उलमा के और औलिया के दस्तबोसी करना और कदमबोसी करना ये भी सुन्नत से साबित है और ये भी जायज है और ये शिर्क नहीं है। उनका खुदा माअज़ल्लाह मुजस्सम होगा जिसके हाथ और पैर होंगे, तो इसलिए जो है उसको उनके नजदीक वो शिर्क है, लेकिन हमारे नजदीक जो है हमारा खुदा जो है वो मुजस्सम नहीं है और हाथ पैर वाला नहीं है। उसने जो है हमको ये, उसके दीन ने हमको ये बताया है कि जो जिन्होंने उसके दीन की खिदमत की और जिन्होंने उसका दीन हम तक पहुंचाया, हम उनकी दस्तबोसी करें, कदमबोसी करें, और उनके तबर्रुकात का इस्तेमाल करना और उसको बाइस बरकत जानना, ये भी सुन्नत से साबित है और अहादीस करीमा से भी साबित है और खुद आयत से भी साबित है। चुनाचे वो आयत है वक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व हारून, जब हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि तुम जालूत के मुकाबले पर चलो, और तालूत को अल्लाह तबारक व तआला ने उनका बादशाह मुकर्रर किया, तो ये लोग झगड़ने लगे, कहने लगे कि ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है, न इसको माल दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने और न इससे हमें हमारे पास जो है किसी और तरीके से बुजुर्गी हासिल है। तो आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जिस्म में और इल्म में तुम पर फजीलत दी है, यानी उसकी जसामत भी तुमसे ज्यादा है, उसका इल्म भी तुमसे ज्यादा है, और असल फजीलत जो है वो इल्म से होती है, न कमाल से होती है। तो कहा कि इसके बादशाही की अलामत क्या है, तो वो फरमान नाजिल हुआ आयत में, फरमाया कि ताबूतु फीहि सकीनतुन मिन रब्बिकुम व बक़ियतुन मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। वो ये है, उसके बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीना होगा, और आले मूसा यानी मुअज़्ज़ज़ मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम और मुअज़्ज़ज़ हारून अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो आसार छोड़े हैं उनका कुछ बकिया, बाकी जो है उनके मतरूकात का कुछ बाकी जो हिस्सा वो तुम्हारे पास आएगा। तहमिलुहुल मलाइका, जिस ताबूत को जो है एजाज के तौर पर जो है फरिश्ते उठाए होंगे। तो उसमें क्या था, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असा था, और मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, और अंबियाए किराम रिज़वानुल्लाह तबारक व तआला अलैहिम अजमईन की तस्वीर थी, क्योंकि उस जमाने में जो है तस्वीर जो है खींचना जायज था, हमारी शरीयत में अब हराम हो गया है, लिहाजा जो है वो उस तबर्रुकात में जो है तस्वीर भी थी और अंबियाए किराम के तबर्रुकात भी थे, नालियां शरीफ भी थी।
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا. یہ سارے تبرکات جن کا اعزاز اور اکرام ملائکہ نے یہ کیا کہ اپنے سر پر اٹھا کر کے نکل گیا. تو اگر یہ جو ہے باعث برکت نہ ہوتے اور ان کی مدروکات کا جو ہے کوئی وقت نہ ہوتی تو یہ فرشتے جو ہے اس کی تعظیم کیوں کرتے؟ معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کو باعث برکت سمجھنا اور اس کی تعظیم کرنا جو ہے یہ ہماری ہم بریلویوں کی، جسے بریلوی کہتے ہیں، ہم بریلویوں ہی کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے.